हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं रिवर टर्न लॉज। ये बैंगलोर से लगभग 280 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और ट्रैवल टाइम बाय रोड ये 6 घंटा लगता है। हमने बीच में कुछ ब्रेक्स भी लिए हुए तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, बट या वी आर हियर फाइनली रिवर टर्न लॉज। गाड़ी पार्किंग में लगाने के बाद, चेक इन प्रोसेस करने के बाद यहाँ का जो स्टाफ है काफ़ी हेल्पफुल है। उन्होंने हमारी हेल्प करी सामान ले जाने में, क्योंकि जहाँ पे हमने पार्क करी है और जहाँ पे हमारा रूम है थोड़ा डिस्टेंस पे है और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। So guys, we have reached our log hut. So we have got a room on this side of the island. So if you see there are rooms which are on the other side of the island as well. So good thing about this side is that you have your Golgar here only, where you get all the meals. So that will be an easier walk, and we can anytime go to explore any part, so that's okay. So ours is the room number 7 and looks great, and let me show it to you. So this is the storage area that we have as we enter. Couple of umbrellas because we are going to need it. Again, more storage place. On left we have the washroom, and this is the room. Pretty good. We have a working AC connection, though we don't need it because it's already very airy. Pretty good bed, and 3 people can stay here. Electric kettle, place to sit inside, or water they said. And the best part, the balcony. You have 2 chairs so as you can soak in the views and check out the views. How beautiful they look. So tomorrow morning we'll be going for water safari as well here in this Bhadra Dam, and along with it they have provided us this schedule that lunch time is almost there 1:30, and then they've asked us to be there by 3:30 p.m. for safari, which starts at around 3:45. We'll come back for snacks and then dinner at 8:30. They also have some small film show at 7:30. Morning is a bit early. You have to wake up at 5:30. There'll be tea, coffee, and then we go for water safari, boat safari, which is at 6:30 p.m. You come back, we'll have breakfast, and then there's some option for water sports as well. We'll see as the weather permits. We'll probably do kayaking or something. We'll see tomorrow morning. Till then, we'll sit back and just relax it. And one more thing, the other side that we see are the cottages. The one that we have is the log hut. We checked with them. They said there's almost same view, exactly the same. Cottages might be slightly different, I may or may not, but everything remains the same, just that they are on the other side of the island, on a different island actually. So let's just enjoy here. And we have couple of other guests here as well. तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद लंच का टाइम हो गया है, और जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पूरा दिन ना प्रॉपर शेड्यूल होता है। हमें सारी चीज़ें उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग करनी होती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और क्योंकि सफारी और बाकी एक्टिविटीज़ भी उसके अकॉर्डिंग अलाइन होती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे खाने में क्या क्या ऑप्शंस है, वेज में भी और नॉन वेज में भी। तो और टुडे इज़ हिज बर्थडे, तो क्योंकि बर्थडे था और हम बेंगलोर में, हमें पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो हमने एक दिन का टाइम निकाला थोड़ी सी आउटिंग करने के लिए, और हम यहाँ JLR आ गए। तो ओवरऑल अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है अच्छा जा रहा है। वेजिटेरियन में भी ऑप्शन है और नॉन वेज में भी ये सारे ऑप्शंस हैं। हैप्पी बर्थडे। Thank you. We'll not give you a quick tour of the resort. So the place is called the River Turn Resort. I saw you, they were recording the sightings as well. They record each day. Unfortunately, since the rain started, they haven't had any sightings of leopard or tiger as such, but they said a lot of elephants and wild bears, and we'll see, what all we can see. But for a week, no sightings of tigers or leopard.
So once we come from the reception area, we have to walk, and from left we can see, once you go on top, we'll see the other cottages start from there. So as we move up, we see cottages start from here, and most of the cottages will all have the same view, which is beautiful. Moving forward, right hand, we have this Golghar. So all the meals are served there. I already showed you earlier. And that is our room, our cottage actually, which looks wonderful. So moving further, rooms are on the other side, remaining ones. So I think there should be a bridge here which connects the other part of the island, the other island actually. So this is the bridge which connects the part of the island, and that is a dam that we can see. The weather has changed suddenly and it has started to rain a bit. Looks wonderful. ब्रिज पे गए हुए थे, बारिश होने लगी थी और हवा बहुत तेज़ चल रही है, मौसम ठंडा है, तो हम फिर रूम में आ गए क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी। हम इवन ऐसा लगा था कि हम ही उड़ जाएंगे, हमारा माइक को फ़ोन उड़ जाएगा। तो हम रूम पे आ गए, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अभी सफारी का जो टाइम है, थोड़ा सा टाइम है उसमें। और यहाँ से रूम से जो व्यू है ना, बहुत ही प्यारा है, इतनी अच्छी सी हवा एंड प्यारा सा ग्रीनरी, एवरीथिंग इज़ सो गुड। तो अब हम जा रहे हैं टाइगर रिज़र्व जीप सफारी में। एक जीप में टोटली 9 लोग जाते हैं, लेकिन अभी क्या है, क्राउड काफ़ी कम है, तो इन्होंने 2 या 3 जीप करी हुई है और एक एक जीप में 4 या 5 ऐसे लोग गए हुए हैं, इंक्लूडिंग गार्ड एंड ड्राइवर। तो ये हम आ गए भद्रा टाइगर रिज़र्व के अंदर। तो यहाँ का कुछ तो प्रोसेस होता है, तो गार्ड और ड्राइवर वो करने गए हैं, और यहाँ के कुछ तो रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए। डोंट स्मोक, डेफिनेटली जंगल के अंदर जा रहे हैं, कुछ खाना नहीं है और जानवरों को कुछ खिलाना भी नहीं है। कपड़े रिकमेंडेड होते हैं कि आप नेचुरल कलर पहनो, ग्रीन या फिर ऐसे कुछ डार्क कलर जो जानवरों की कैच में ना आए, और शोर नहीं मचाना है, म्यूज़िक नहीं चलाना है, और कुछ खाना भी नहीं है, उनको खिलाना भी नहीं है। ये पहली वाटर बॉडीज़ है अभी, क्योंकि बारिश हो रही है तो इसलिए जाहिर सी बात है हमें बहुत ही कम चांसेस है हमें कोई जानवर दिखेगा, क्योंकि बारिश हो रही है, मौसम ऑलरेडी ठंडा है। और हमें अपनी सफारी का पहला कुछ दिखा, ये आउल, उल्लू ऐसे पेड़ों में बैठा था, मेरे को तो दिखता भी नहीं, अगर गार्ड नहीं होते तो उन्होंने बताया। देन वी स्टॉप फॉर सम टाइम एंड ये बारिश होने लगी है। तो जब बारिश नहीं होती है तो जो सफारी में जो आगे का पोर्शन होता है ना, ये ओपन कर देते हैं, क्योंकि अभी बारिश होने लगी तो उन्होंने वो भी कवर कर दिया। तो उससे क्या होता है, हमारा जो फ्रंट व्यू होता है वो ब्लॉक हो जाता है, बट व्हाट टू डू, बारिश होने लगी। हम थोड़ी दूर और चले, फिर हमें बहुत सारे हिरन दिखना शुरू हो गए, खेल रहे थे या इधर उधर भाग रहे थे, बहुत सारे थे वो। फिर नेक्स्ट हमें दिखा बाइसन। ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं और काफ़ी हैवी होते हैं। तो बारिश क्या है, हो रही है बंद हो रही है, हो रही है बंद हो रही है। तो जैसे अभी बंद हो गई है, तो आप देखो ये फ्रंट का जो व्यू है इन्होंने ओपन कर दिया, विच इज़ गुड, एटलीस्ट हमें सामने से भी कुछ दिखेगा। तो ये जो फॉरेस्ट है ना, ये काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है, और अभी बारिश के टाइम पे तो और भी ज़्यादा ग्रीन हो जाता है। तो इस टाइम पे कोई भी जानवर दिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो घास वगैरह होती है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हो जाती है। तो थोड़ा सा और दूर जाने पे हमें दिखते हैं 2 एलिफेंट। यहाँ पे टोटल जो एलिफेंट हैं, शायद जो ये गार्ड में बता रहे थे 160 प्लस,
थोड़ा सा आगे और गए थे, एक ये प्यारा सा हिरन अकेले था, ये हमें देख के भाग गया। ये सारा बैक वाटर एरिया है, यहाँ पे जानवर दिखने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अभी जैसे बारिश हो रही है, बंद हो रही है, तो उस टाइम पे डिफ़िकल्ट हो गया। और दैट इज़ ट्रू, क्योंकि जब हमने ये सफारी शुरू भी करी थी, इवन जब मैंने बेंगलोर से रिवर्टन के लिए आए भी थे भद्रा टाइगर रिज़र्व सफारी के लिए, तो दिमाग में कहीं ना कहीं था, क्योंकि बारिश हो रही है और ये मौसम ऐसा है कि इस टाइम पे जानवर हमें कम दिखेंगे। तो हमें ये रास्ते में प्यारा सा मोर दिखा, तो क्योंकि जानवर कम दिखेंगे तो वी वर काइंड ऑफ हैविंग लेस एक्सपेक्टेशन कि ऐसा ना हो कि हम सोच के जा रहे हैं हमें टाइगर दिखना है और टाइगर ना दिखे तो बुरा लगता है। तो ये हमारी लेस एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हमें रास्ते में जैसे भी आप देख रहे हो ये बहुत सारे हिरन का एक और झुंड दिखा, छोटे हिरन, बड़े हिरन और बहुत डिफरेंट सांबा हिरन, स्पॉटेड हिरन, काफ़ी डिफरेंट टाइप के थे। बट हाँ, हमें इस सफारी में हम वी वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि चीता दिखे, बट नहीं दिखा वो। हमारी जंगल सफारी अच्छी रही, हिरन दिखे, मोर दिखा, एलिफेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें दिखी। तो ये जो जीप सफारी थी ये ऑलमोस्ट 3 आवर्स की थी। वी हैड अ रियली ग्रेट टाइम। तो सफारी से आने के बाद शाम की चाय रेडी हो गई थी, तो हमने चाय और नाश्ता किया, फिर रूम में थोड़ी देर आ गए क्योंकि बारिश होने लगी थी। एंड वी वेंट आउट अगेन ब्रिज पे, क्योंकि हम दोपहर में जब गए थे तो बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी। अभी भी बहुत तेज़ हवा चल रही है, लेकिन एटलीस्ट बारिश नहीं है। तो अब रात भी हो रही है और शाम के टाइम पे इनका मूवी शो है जो भद्रा टाइगर रिज़र्व और रिवर्टन के बारे में बताते हैं कि ये कैसे बना। तो वी आर गोइंग फॉर दैट। And its rich roam around the prosperous wildlife of Bhadra. तो मूवी शो वॉज गुड, और क्योंकि थोड़ी ठंड भी हो रही थी और बारिश नहीं हो रही थी तो इन्होंने बॉनफायर भी किया। थोड़ी देर वहाँ पे बैठने के बाद फिर डिनर का भी टाइम हो गया था, डिनर लग गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि डिनर में यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। स्टार्टिंग सूप है, सूप अच्छा था, हॉट एंड और वेज सूप, और बाकी ये सारे आइटम। आई वुड से मुझे जो डिनर का मेन्यू था ये काफ़ी अच्छा लगा कंपेयर टू लंच का मेन्यू। डिनर में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, तो टायर्ड भी हो गए थे खाना वाना खा के। फिर हम सोने चले गए। Good morning guys, so it is our second day morning. It's 6 a.m. and the breeze is beautiful and such a great morning. So we are all set for our boat safari. We have to reach there by 6:15. Tea, coffee will be served and then we'll go for the boat safari. It's a 2-hour safari in this Bhadra Reservoir, and we expect to see some wildlife on the banks. There was a call, they came in at around 5:20 to wake us up. That was nice of them. So yeah, we're all set.
ये हमारी बोट है जिस पे हम सफारी पे जाएंगे। हमारी बोट सफारी शुरू होती है तो टूरिस्ट के साथ साथ इसमें दो से तीन लोग और होते हैं। एक तो जो चला रहे होते हैं बोट वो, और बाकी गाइड करने के लिए। और जाहिर सी बात है पानी में जा रहे हैं तो वी नीड टू बी वेरी वेल प्रिपेयर। तो ये लाइफ जैकेट वगैरह भी देते हैं ताकि आप पहन के बैठो इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो। तो सबसे पहले जो हम जा रहे हैं वो हम जा रहे हैं रिवरटन आइलैंड। रिवरटन आइलैंड का नाम रिवरटन बर्ड की वजह से पड़ा हुआ है। रिवरटन बर्ड ये फरवरी टाइम फ्रेम पे इस आइलैंड पे आते हैं ब्रीडिंग के लिए और जुलाई अगस्त में चले जाते हैं क्योंकि तब तक बारिश काफ़ी हो जाती है। तो ये आइलैंड जो है ये पूरा पानी में डूब जाता है, तो ये उसके पहले चले जाते हैं क्योंकि तब तक उनके बच्चे भी बड़े हो जाते हैं। वेट कर रहा हूँ।
काफ़ी अच्छा लगा रिवर टर्न आइलैंड देख के और इतनी सारी बर्ड्स देख के। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी थे जो उड़ नहीं पा रहे थे, शायद वो थोड़ा डर भी गए होंगे पोर्ट देख के। एंड आपने चिड़ियों की आवाज़ सुनी, बहुत अच्छा लगा ये सब सुन के। तो हम आगे आ गए और बारिश भी होने लगी, लेकिन कुछ कुछ हमें बर्ड्स दिखी। अभी बारिश काफ़ी तेज़ हो गई तो डेफिनेटली कोई होप तो नहीं है हमें कुछ दिखेगा, सिवाय हिरन शायद हमें दिख सकता है। लेट्स सी और हमें क्या क्या जानवर देखने को मिलते हैं। अब हम वापस आ रहे हैं। ये जो बोट राइड है 2 से ढाई घंटे की है, काफ़ी मज़ा आया। बारिश भी हुई बीच में, बट ओवरऑल इट वाज गुड। मौसम भी ठंडा है, हवा भी ठंडी और प्लस हल्की हल्की सी बारिश भी। तो चूँकि बारिश हो गई है तो ज़्यादा होप तो नहीं थी कि हमें वाइल्ड एनिमल्स देखने को मिलेंगे, बट हाँ हमें हिरन देखने को मिला एंड वाइल्ड बोर्स और डिफरेंट टाइप की बर्ड्स जिनके बारे में शायद मुझे पता भी नहीं था। तो वापस आ रहे हैं क्योंकि ब्रेकफास्ट का भी टाइम हो रहा है, उसके बाद चेकआउट भी करना है। ये भद्रा डैम है। अभी इसके गेट ओपन नहीं हुए हैं क्योंकि अभी शायद उतनी बारिश नहीं हुई है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो इसके गेट ओपन हो जाते हैं। तो हम आ गए ब्रेकफास्ट करने। मैं आपको जल्दी से दिखाती हूँ यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं।
तो ब्रेकफास्ट करके वापस आ गए अपने रूम में और आप देखिए बहुत प्यारी हवा चल रही है। मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा छोड़ के जाने का, बट जाना पड़ेगा। So guys, we are about to check out. All the activities are done. We've had a breakfast, packed our bags, and it's almost 10:30 to 11 a.m. Yesterday when we were here at this spot, it started raining a lot. Wind was very strong. Wind was still strong, but it's not raining at least. And this place is amazing. All the cottages are on the other side, and all the log huts and some cottages are on this side. Overall, our stay has been excellent. The safari was amazing, and the boat safari today was spectacular, to say the least. We really loved it. The guide was very knowledgeable. He informed about a lot of things that happen here, about the dam, about the birds that come in, about the animal. We were able to have some wildlife sighting, not much, but some deers, wild boars, lot of river terns, among others. Food has been really good here. Best part is the staff is very courteous, and it's a beautiful property. And what I think is, if you really want to enjoy it, you probably need to stay for 2 days. We stayed it only for 1, but I would argue that GLRs are a bit costly. It costed around 14 to 15k for 1 night stay. So for 2 nights, it would come down to 30,000 for a couple. So it's up to you, but yeah, I think 2 days would be the best from staying here. You see, this is the Bhadra Dam. When it rains a lot, probably in August and September, by the time it rains, these open, and most of the island, from what I remember in pics, these also get segregated because water level rise so much. So having said that, wonderful stay. Just a short one, but we totally loved it. We're planning to go now quickly, and we have one place in mind before we head off to Bangalore. Thanks guys. तो टाइम टू से बाय टू भद्रा टाइगर रिजर्व और रिवर टर्न लॉज। काफ़ी अच्छा स्टे रहा, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट काफ़ी मज़े आए, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं यहाँ पे। एंड भद्रा टाइगर रिज़र्व में मेरी ये दूसरी सफारी थी। पहली मैंने जीप सफारी करी थी जिम कॉर्बेट पे। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा और मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है आपके साथ डिटेल शेयर करने की, बट इनकेस आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।